हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। एज यू नो कि हमारी 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है पंजाब एग्जाम्स के लिए। ओके उसी सीरीज़ के तहत आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अराउंड 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद आंसर्स, सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी से। द क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बेल्ट। यू हैव टू स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल, मीन्स द डेजर्ट्स आर लोकेटेड in subtropical high pressure cell belt. Okay, second is it is under the influence of warm oceanic current. You have two options. Out of two options you have to choose the correct one. First option is correct because in and around 30° north and south western margin of continents have deserts. We will see in diagram. Okay, but due to that presence of subtropical high pressure, what happens in subtropical high pressure? क्या होता है subtropical high pressure में? subtropical high pressure में क्या है, आपकी जो एयर है वो नीचे की तरफ डिसेंड करती है। नीचे डिसेंड करेगी तो वो फेयर वेदर कंडीशंस लेके आती है, मतलब बारिश बिल्कुल नहीं होगी। अगर हवा नीचे आ रही है ऊपर जाती है तो कंडेंसेशन होती है, बारिश होती है। अगर नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी, मतलब डेजर्ट कंडीशन होगी। सेकंड इज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। ये गलत है। जो वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के वो कोल्ड ओशनिक करंट के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और कोल्ड करंट हमेशा फेयर वेदर कंडीशन लेके आती है, मतलब बिना बारिश वाला सीजन। समझ रहे हो इस चीज को? और आंसर क्या होगा फिर आपका? आंसर रेड कलर में मार्क है, आप देख सकते हो। ओनली वन आपका आंसर होगा, ओनली वन इज करेक्ट। कैन यू सी दिस मैप? लाइक दिस इज desert in western part of America. Can you see SH here? Subtropical high pressure. Can you see blue lines representing cold current? Same, can you see this one, Atacama Desert? Cold current, subtropical high pressure. These are two important factors for presence of deserts in subtropical region on western margin of the continents. Got this? We are moving to the second question. Fine. Which one of the following is the characteristic climate of tropical savanna region? Tropical savanna region. So you have four options. One is rainfall throughout the year. Second is rainfall in winter only. Third is an extremely short dry season, and fourth is a definite dry and wet season. The main characteristic of savanna type climate or savanna vegetation is definite wet and dry cycle. So your answer should be D. How? Can you see this climograph? Heavy rainfall during summer season and low rainfall or nothing in winters. Definite wet and dry cycle is the important characteristic of savanna type climate. And where you will find savanna type climate? Can you see these? African savanna, Brazilian savanna, Campus, India. These are few examples of savanna type climate. Here the average rainfall remains around less than 150 centimeter mainly due to interior locations. Fine. The wet and dry cycle means one season will be completely dry, mainly winter, and summers will have enough rainfall. Got this? Now this is very important topic. It's about La Nina and El Nino. You have to go through the lines
while attempting the questions. La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? Question is, how is La Nina different from El Nino? You have two statements. One is La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean. Now the catch is, whereas El Nino is characterized by unusual warm oceanic temperature in equatorial Pacific Ocean. Everything is right in this statement except Indian Ocean. El Nino and La Nina are the concept or phenomena in Pacific Ocean, South Pacific Ocean, between Australia and South America. वहाँ होता है ये, ठीक है। तो ये बच्चा अगर नहीं पकड़ पाएगा तो वो गलत हो जाएगा। कहाँ का फिनोमेना है ये? साउथ पैसिफिक ओशन का फिनोमेना है। सेकेंड इज एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून। बिल्कुल ठीक है। एल नीनो क्या करता है? आपके मानसून को वीक कर देता है। एंड ला नीना हैज नो इफेक्ट। दिस इज द कैच हियर। यहां आपको पकड़ना है, ला नीना में क्या होता है? फेवरेबल मानसून्स होते हैं, अच्छी बारिश होगी इंडिया में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंडिया में क्या होगी? बहुत अच्छी बारिश होगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे इसमें? नाइदर 1 और 2, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कैन यू सी? दिस इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिकास। फाइन। Pacific Ocean, El Nino, La Nina. In El Nino, what happens? Warm ocean current replaces your cold current along the southern coast. And in La Nina, there is extensive, you can say, normal जो सर्कुलेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये कोल्ड करंट है, ये और भी कोल्ड हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस फेवर्स द मॉनसून्स। ये मॉनसून्स को फेवर करती है। Got this or not? Now next question is, the seasonal reversal of wind is the typical characteristic of, और ये जो questions मैंने लिए हैं, these are from exams like CDS, APFC, few are from earlier UPSC questions, earlier before 2010. So ये बहुत important questions में से आते हैं। अब मॉनसून्स पे क्वेश्चन बनना बहुत ही, आप कह सकते हो, हर साल हर टाइप के एग्जाम में मॉनसून से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। सेम इसमें देखो, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कौन से टाइप के क्लाइमेट में होता है? हमें पता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट में होगा? भाई मॉनसून में होगा। कैसे? आंसर देखो, मॉनसून है, देख सकते हो, साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं समर में, और नॉर्थ ईस्ट आपका नॉर्मली हमारा इंडिया के ऊपर कौन सी विंड चलती है? नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है। रिवर्सल ऑफ विंड मॉनसूनल सीजन का कैरेक्टरिस्टिक है। गॉट दिस और नॉट? ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये भी गलत हो जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फेयर, अराउंड ऑन एवरेज 14 to 15 किलोमीटर। उसके बाद कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है? आपकी ओजोन होती है जो आपकी यूवी रेज को ऑब्जर्व कर लेती है। 90% ऑफ ओजोन आपकी यहीं मिलती है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर में। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी CDS का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर CDS में पूछा गया है। ठीक है, इजी है, बट these questions are important. Which one of the following longitude determines the Indian Standard Time, IST? इंडिया के बीच से जो होती हुई जाती है वो कौन सी है? कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। पूरा का पूरा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया के बीच से जो लॉन्गिट्यूड जाती है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री, सॉरी। तो आप ये देख सकते हो, NCERT का डायग्राम है। 82.5 डिग्री याद कैसे रखोगे? मिर्ज़ापुर आपने सुना होगा, मिर्ज़ापुर से होती हुई जाती है ये इलाहाबाद के पास। फाइन, चलिए
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन, देखो मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हो, मैक्सिमम इन सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, क्ले, ये ऑप्शंस है। ऑब्वियसली ग्रेवल्स का साइज सबसे बड़ा होगा, सैंड का थोड़ा उससे छोटा, सिल्ट उससे छोटी, सबसे छोटे पार्टिकल क्ले के होते हैं। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे इन टोटल वो उतना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो क्ले होती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक सिंपल सा देखो, देखो इसमें देखो कितना फास्ट पानी जा रहा है ग्रेवल्स में, सैंड में थोड़ा सा स्लो, उससे सिल्ट में, और देखो क्ले में 2 दिन लग जाते हैं इस पानी को निकलने में। होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है भाई? क्ले की है कि नहीं? लास्ट क्ले है, फर्स्ट ग्रेवल्स है, सैंड है, सिल्ट है। कितना इजी है, समझ लो। गॉट दिस? नाउ ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है, साइंस से भी रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल फेवरेबल कंडीशन बाय सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म डिस्पाइट चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 मेंटेन रखते हैं हम, कम हो ज़्यादा हो एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आवर ब्लड शुगर लेवल, एक सिंपल होम्योस्टेसिस का एग्जांपल देता हूँ। देखो ब्लड, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होता है तो आपका क्या होगा, इंक्रीज होने के कारण सिग्नल जाएगा ब्रेन पे, भाई ब्लड का शुगर इंक्रीज हो गया है। वो पैनक्रियाज को सिग्नल देगा, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन क्या करेगा, सेल्स को सिग्नल देगा कि भाई ब्लड से शुगर मॉलिक्यूल्स को अंदर ले लो ताकि शुगर की कंसंट्रेशन कम हो जाए। नॉर्मल स्टेज रखना, स्टडी स्टेट जो बॉडी की है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, चाहे वो शुगर कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो सोल्ट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो वाटर है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड दैट दोज प्रोसेसेस क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस। गॉट दिस और नॉट? Homeostasis will be your answer. You can see this. Now this is from NCERT. इकोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखो क्वेश्चन है, ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कन्फाइंड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड आर रेफर्ड टू एज। अब चारों आपको पता होना चाहिए। जहां नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स कुछ एनिमल्स हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ थोड़े सी रेंज में अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेनोथर्मल, इसका आंसर क्या होगा, स्टेनोथर्मल। ठीक है। एंडोथर्मल होते हैं जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करें, एक्टोथर्मल होते हैं जो बाहर से सन से हीट लें, यूरीथर्मल होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें यूरीथर्मल विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर लाइक ह्यूमंस। हम -20 में भी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? हम 45 डिग्री पे भी रह सकते हैं। -20 में हमारी अडेप्टेशन क्या है, हम क्या करेंगे, अंदर रहेंगे, कपड़े बहुत सारे पहनेंगे, समझ लो। बट स्टेनोथर्मल लाइक फॉर एग्जांपल आपका पाइथन है, पाइथन सिर्फ एंड सिर्फ उन प्लेसेस में रह सकता है जिनका टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा हो, 22 डिग्री से ज़्यादा हो, समझ लो इस बात को। तो स्टेनोथर्मल की जो रेंज है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर रेंज पे, क्योंकि वो नैरो रेंज में ही सरवाइव कर पाते हैं। और इस डायग्राम से फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेनोथर्मल। ये देखिए स्टेनोथर्मल का एग्जांपल पाइथन। पाइथन आपको टेम्परेट रीजन में नहीं मिलेगा, ट्रॉपिकल में मिलेगा, क्योंकि ये 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में ही सर्वाइव कर पाता है। कोरल रीव्स वो भी 22 डिग्री सेल्सियस में ही सर्वाइव कर पाती हैं। नाउ दिस इज फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी। ये क्वेश्चन है आपका पी एंड एस वेव्स पे। आपको पी और एस वेव्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी क्लास 11 में ये पढ़ोगे आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक वेव्स। सिस्मिक वेव्स होती हैं दो टाइप की, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती हैं वो आपकी पी टाइप एंड एस टाइप होती है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। देखो पी टाइप, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो,
S waves are like sound waves. It can travel through solid, liquid and gases. No, this statement is wrong. Why? क्योंकि P waves की property है ये, वो sound waves की तरह होती हैं P waves. Second is the direction of vibration of P waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. No, ये भी गलत है, ये S waves की property है, दोनों गलत हैं. Third, surface waves are generated because of interaction of body waves with the surface rocks. Yes, this is right. So question क्या है, कौन सी incorrect है? कौन सी incorrect होगी भाई? 1 and 2. अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए. ये देखो, ये प्रॉपर्टी जैसे हमारी साउंड वेव्स होती है ना, पार्टिकल्स क्या है, पैरेलल टू प्रोपोगेशन होते हैं. मींस देखो, जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मूव करते हैं पी वेव्स के, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, समझ रहे हो. एस वेव्स के पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. तो दोनों स्टेटमेंट उल्टी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? तो दोनों गलत हुई. फाइन. नाउ दिस इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, मतलब ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी बोल सकते हो, वहां से क्वेश्चन है. अब देखो कैच क्या है, सिंपल सिंपल चीजें हैं. 3 स्टेटमेंट गिवन है. वन इज 80% ऑफ द कोल डिपोजिट इन इंडिया इज एंथ्रासाइट. बेटा इंडिया में बिटुमिनस कोल पाया जाता है, ना कि एंथ्रासाइट. गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत है. ठीक है. पीट कोल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन. नो, ये छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है. लोवेस्ट होता है. देखो, हाईएस्ट कार्बन इन एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट बोग. सबसे लोवेस्ट पीट बोग में होता है. सिंपल चीजें हैं ये. दोनों गलत हुई. लिग्नाइट ओकर इन कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात. ये ठीक है. लिग्नाइट क्या है आपका, तमिलनाडु और गुजरात में पाया जाता है. एंथ्रासाइट इंडिया में नहीं पाया जाता. सिर्फ एंड सिर्फ जम्मू में एक जगह है कलाकोट, वहां एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है. अदरवाइज इंडिया जो एंथ्रासाइट कोल है वो इंपोर्ट करता है. और सबसे ज़्यादा जो है कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में होता है. तो सबसे क्लीन एनर्जी होती है अगर कोल्स को कंपेयर करो तो. आप गॉट दिस और नॉट? फाइन. एनी इश्यूज? चलिए, आंसर क्या होगा? 1 and 2 इनकरेक्ट पूछा है. और ये भी एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना कि वो पूछना क्या चाह रहा है भाई. करेक्ट इनकरेक्ट, इसी चक्कर में ना 2-3 क्वेश्चन गलत कराते हो आप लोग. देखिए, ये 2 जगह हैं जहां आपका ये दिख रहा है, कच्छ रीजन, उमरसरिया जगह है, एंड दिस इज नवेली तमिलनाडु जहां लिग्नाइट मिलता है. ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है. राजस्थान में भी लिग्नाइट है थोड़ा बहुत, मारपालना करके जगह है, और यहाँ लिग्नाइट एज वेल एज एंथ्रासाइट दोनों मिलते हैं जम्मू में. बट दीज आर नॉट लार्ज प्रोड्यूसर. जो लार्ज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया वो ये है बेटा इंडिया का. बिटुमिनस कोल मिलता है. अगर मैं बात करूं तो 90 to 95% प्रोडक्शन इसी एरिया से आती है. मोरेन, फॉरेड, ड्रमलिन्स, स्कर, ये क्या है बच्चे? ये ना जो ग्लेशियस इरोजनल और डिपोजिशनल जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, उनके नाम हैं. ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगे. इजी क्वेश्चन है. अगर आप एक बार भी इफ यू गो थ्रू दोज एनसीईआरटी, एंड हर टाइप के आप कह सकते हो एग्जाम में वो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्लेशियर्स. फाइन. देन दिस इज फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी. बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया. 3 स्टेटमेंट है. फर्स्ट है बैरन आइलैंड, हाँ ओनली एक्टिव वोल्केनो है. सेकंड इज सैडल पीक इज लोकेटेड इन लक्षद्वीप. नो, इट्स लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स and in North Andaman. We will see that. 10-degree channel separates Amini Islands with Kannur Islands. ये आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप के. बट 10-degree चैनल लक्षद्वीप को डिवाइड ही नहीं करता 2 ग्रुप्स में. 10 डिग्री डिवाइड करता है आपका अंडमान को और निकोबार को. समझो इस चीज को. किसको डिवाइड करता है? अंडमान निकोबार को. तो करेक्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट आपका ओनली 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
करेक्ट क्या होगा? ओनली वन। ये देखो 10 डिग्री किसको डिवाइड कर रहा है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कर रहा है। और हाईएस्ट पीक कौन सी? सैडल पीक है, ये देखो नॉर्थ अंडमान में। ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग। ये सीधी सीधी जो स्टेटमेंट्स है ना, ये एनसीईआरटी से उठाई गई हैं स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतलुज रिवर। इट ओरिजिनेट्स एट राकशताल लेक इन मानसरोवर। इट इज नोन एज लक्षण कंबम इन तिब्बत। ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठाई हुई हैं। दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। आपका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जो सतलुज है उसका ओरिजिन तिब्बत में होता है, मानसरोवर लेक के पास, राकस्थल लेक है। ठीक है। एन इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? लक्षण कंबम, इसको नाम दिया गया है तिब्बत में। आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। नाउ करेवाज। सेफ्रॉन खाया आपने? सेफ्रॉन यूज करते हैं, बहुत महंगा होता है। इंडिया में जो सेफ्रॉन की खेती होती है वो कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में कह सकते हो, जहां करेवाज है। करेवाज क्या है? ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स हैं। किसके? ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स हैं। अनइवन लैंड होती है, बट दैट इज वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन। सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। तो क्या है? थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। करेवाज कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब आप कह सकते हो कश्मीर वैली में। कहाँ है? कश्मीर वैली में। तो आंसर क्या होगा आपका? ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। देन एनवायरमेंट, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको आइडिया होना चाहिए टॉपिक लेवल्स का, प्रोड्यूसर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब स्टेटमेंट गिवन है 4, उसमें पूछा है कि गलत कौन सी है। देखते हैं गलत कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हार्बिशियस एंड वुडी प्लांट। ऑब्वियसली कहीं भी जो है मेजर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड ऑन कॉन्टिनेंट, प्लांट ही है ना सारे प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट। मतलब देखो पहले प्लांट है, फिर एनिमल है, फिर एक एनिमल उसे खा रहा है। तो देखो अगर आप इस चीज को देखो, प्लांट हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट एनिमल हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड एनिमल हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर इसको भी कोई खा ले वो टर्शरी कंज्यूमर होता है। बट ये हमारी स्टेटमेंट में ये क्या होना चाहिए? सेकेंडरी कंज्यूमर होना चाहिए बच्चे। इफ एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न्स ईट प्लांट, मतलब प्लांट को खा रहा है और इसको एक एनिमल खा रहा है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ ना। प्राइमरी कंज्यूमर ये हुआ, अगर इसको भी कुछ खा लेता है तो वो टर्शरी कंज्यूमर होगा। मैं एग्जांपल बताता हूं इसका सिंपल। जैसे आपका ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, तो ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग आपका, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। ये देखो फ्रॉग आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चों इधर। हाँ जी, देखो प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीपी बोलेंगे प्लांट। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आपका ग्रास होपर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर उसको फ्रॉग खा रहा है, टर्शरी कंज्यूमर फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना कि वो ऐसे एनिमल को खा रहा है जो प्लांट को खा रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर होना चाहिए, जबकि हमारी स्टेटमेंट में टर्शरी लिखा है। आपका आंसर यही आ जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी। एंड प्राइमरी कंज्यूमर विल ऑलवेज बी हार्बिवोरस। ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स को खाते हैं तो वो हार्बिवोरस एनिमल्स होंगे ही होंगे। एंड दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोरस फॉर फूड आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोरस। ऑब्वियसली मतलब अगर आपका कार्निवोरस की बात करूं तो
जो एग्जाम्पल दिया था उसमें स्नेक सेकेंडरी कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस वो होते हैं जो प्लांट की बजाय एनिमल्स को खाते हैं। लाइक स्नेक आपका फ्रॉग को खा रहा है, वो कार्निवोरस है। ग्रास ओपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग प्राइमरी कार्निवोरस होगा। फाइन, सिंपल। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है? लाइफ देखो सीधी तो स्टार्ट हुई नहीं थी, पहले बैरन रॉक्स होंगे, बैरन मतलब खाली रॉक्स, फिर उन पे कुछ बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करेंगे, फिर छोटी छोटी श्रब्स ग्रो करेंगी, फिर थोड़े बड़े प्लांट्स, फिर आपके फॉरेस्ट बनेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना कम्युनिटीज का, ये जो सीक्वेंस है लाइफ का, इसको सक्सेशन बोलते हैं। और प्राइमरी सक्सेशन होती है ऐसी जगह जहां लाइफ कभी थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनोज पे, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स रिट्रीट होने के बाद, जहां पहले लाइफ नहीं थी, तो स्लोली आपकी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस बनती है और एक कम्युनिटी जाके डोमिनेट करती है, वो सक्सेशन होता है। तो इस केस में देखो दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट है इट स्टार्ट इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज देयर। ऑब्वियसली प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन ही है, ये ठीक होगी। इट इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। नो, प्राइमरी सक्सेशन होती है वो स्लो होती है, क्योंकि यहाँ लाइफ पहले से थी नहीं, सोयल नहीं थी, कुछ नहीं था, वो बने हैं विद द टाइम। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है कि आपका आग लग गई, आपका फ्लड्स आ गए, डेजर्ट आ गए, जिसके कारण इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो दोबारा से बनने में इतना टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर आप बिल्कुल लाइफलेस जगह पे स्टार्ट करोगे लाइफ, तो उसे टाइम लगेगा सोयल बनाने में, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने में, प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइज सोयल बनाने में, वो टाइम लेती है। तो हमेशा प्राइमरी सक्सेशन स्लो होती है, किससे? सेकेंडरी से। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आपको क्या है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज गिवन है और कौन सा ठीक है। म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट, लाइक यूर लाइकेन्स। फंजाई है, एल्गी है, एल्गी फंजाई को फूड देता है, फंजाई क्या करता है, फंगस को क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, फंगस एल्गी को प्रोवाइड करेगा क्या, न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट अपटेक फास्ट करता है। सेम आपका म्यूचुअलिज्म के बहुत एग्जांपल ले सकते हो। आपका जो दाल का प्लांट होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, राइजोबियम को। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से। दोनों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो म्यूचुअलिज्म है। तो ये आपका ये ठीक है बिल्कुल। प्रेडेशन प्रे, वन स्पीशीज बेनिफिट अदर हार्म। ऑब्वियसली जो शिकार करता है उसे फायदा होगा, शिकारी है उसको फायदा होगा ना। और जो शिकार है मतलब प्रे, प्रीडेटर, प्रे की पॉपुलेशन कम होगी, एक बेनिफिट हो रहा है, एक को हार्म हो रहा है, ठीक है। अमेंसलिज्म, वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर अनअफेक्टेड। नो, एक स्पीशीज को हार्म होता है, दूसरी अनअफेक्टेड होती है। लाइक इन केस ऑफ फंजाई क्या करेगी, पेनिसिलिन रिलीज कर देती है अपने सराउंडिंग में, सो उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया को हार्म होता है, फंजाई को कुछ नहीं होता, वो अमेंसलिज्म होता है। ये जो डेफिनेशन है ये कमेंसलिज्म की है, तो आपकी ये गलत है। तो इनमें से ठीक कौन सी है, करेक्टली मैच 1 and 2 ऑब्वियसली। फाइन, 1 and 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। आपकी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो दो टाइप की होती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। अगर आपका रिजर्वोयर किसी भी एलिमेंट का गैस हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन आपकी मैक्सिमम कहाँ मिलती है, एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड का है एटमॉस्फेयर में, कार्बन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गैसीय साइकिल है। फॉस्फोरस का, सल्फर का, इनका मिलता है पत्थर में, सेडिमेंट्स में, वो सेडिमेंट्री साइकिल होगी। रिजर्वोयर कहाँ है उनके, सेडिमेंट्स में। तो आपकी सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी होनी चाहिए बच्चे, फॉस्फोरस और सल्फर होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन क्या होंगी, 3 and 4, बी ऑप्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्बिडो। एल्बिडो होता है कि कितने % रिफ्लेक्ट बैक करती है, कितना पार्ट वो रिफ्लेक्ट बैक करती है जो सनलाइट का है, कोई भी सरफेस। लाइक स्नो 80% तक रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो स्नो की एल्बिडो कितनी है, 0.8। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी, इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट दैट ए सरफेस रिफ्लेक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। Surface that do not reflect much of the light falling on them are bright
एंड दे हैव लो एल्बिडो। सब कुछ ठीक है बट वो ब्राइट नहीं होते। वो क्या होते हैं, जो ऑब्जर्व कर लेंगे ऑब्वियसली वो ब्राइट नहीं होंगे, जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो ब्राइट होते हैं ना। ये क्या होंगे, डल दिखेंगे। जो सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिनका लो एल्बिडो होता है, वो दिखने में डल होते हैं। गॉट दिस और नॉट? तो आंसर क्या होना चाहिए, कौन सी ठीक है? 1। ये देखो, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आपको 4 नेशनल पार्क गिवन है, नॉर्थ टू साउथ पूछ लिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा देखो, सारे तो रट्टा नहीं मार सकते हो, लेकिन आइडिया होना चाहिए। अब देखो आइडिया क्या है, कॉर्बेट है उत्तराखंड में, माधव नेशनल पार्क है एमपी में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, नगरहोल है कर्नाटका में। तो ये दोनों अपोजिट एंड हो गए। कर्नाटका सबसे साउथ में होगा, कर्नाटका वाला मतलब 2 किस में ऑप्शन है, ये वाली। सबसे नॉर्थ में होगा उत्तराखंड। आंसर आ गया 3 4 1 2, सीधा सीधा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे एक्सक्लूड भी करना है। जरूरी नहीं कि चारों पता हो आपको, 2 भी पता है तो भी आप आंसर कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से एक्सक्लूड करके आंसर कर पाते हैं हम। गॉट दिस? चले, सी आंसर होगा इसका, देख लीजिए। द ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बटरस रूट। बिकॉज क्या होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रूट शैलो होती है, बट ट्री बड़े बड़े होते हैं, शैलो रूट उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए उनकी रूट बहुत फैली हुई होती है। उन रूट्स को बटरस रूट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? बटरस रूट बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगी आपका? डी। ये देखिए, ये बटरस रूट है, बहुत बड़ी बड़ी, डीप नहीं होती, शैलो होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पानी अवेलेबल है, नीचे तक जाना ही क्यों रूट्स को। बट ट्री बड़े हैं तो सपोर्ट के लिए रूट्स बहुत फैली हुई होती है। दिस स्प्रेड इन ए लार्जर एरिया। It is reported that there is ongoing decrease in pH value. Decrease in pH value का मतलब है acidic हो रहा है of ocean water because of global warming. It happens due to larger uptake of CO2 by oceans. Why? क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 बढ़ी तो उसके कारण क्या है, ओशियंस में भी CO2 बढ़ेगी। ओशियंस में CO2 डिजोल्व ज्यादा होगी तो वो क्या है, वीक कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये कार्बोनिक एसिड ओशियन वाटर को एसिडिक बना देता है। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा? लार्ज अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशियनिक वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? वाटर वेपर्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, मेथेन होती है, CO2 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, बट नाइट्रोजन नहीं होती, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? विच कैन ऑब्जर्व आउट गोइंग अर्थ रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसके कारण वो है एटमॉस्फेयर और अर्थ का जो है एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। वो गैसेस CO2 होगी, मीथेन होगी, ये क्या करती हैं, जो आउट गोइंग हीट रेडिएशन है उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं और रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, ताकि रात को जो है अर्थ इतनी ठंडी ना हो, एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ का। चीता विच बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इज ऑल सेट टू रिटर्न to the country according to the union government section plan. How many of big cats will be introduced in the next 5 years from African savannas? आंसर होगा इसका अबाउट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। फाइन, चलिए, ये 25 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।